Dear students, welcome in Biru English tutorial. Today we will read how to write a letter to editor. This is format there is given how to write a letter to editor, and also this format is usable in all kind of writing letter. The same format is used. So in class 10th and 12th we always used to write the letter 100 to 150 words. So this is the format is given here. The beginning of letter we always write sender's address. Who is posting the letter, you have to write their address. Always in the question is given sender address, so you have to write the same address. Next, leave a line and give date. A standard format of date you have to write, and once again leave the line and write receiver's address, and then leave once again on a line and write subject. Subject will be given in question. Next, you have to write salutation. In salutation you have to write sir, madam, and then now here you have to begin body of letter, and next complimentary closing, just like thanking you, yours sincerely, and at the end you have to write your name. And how to begin of the beginning in a letter to editor. So there is given three way we can start to begin in a letter to editor. Just like there is given, I am writing to you in order to highlight. Second, through the column of your esteemed newspaper. And third one is, I am writing this letter in order to draw attention. This way you can start, but there is a standard format, and by the given above three of them I have written here one. So this way you can also write through the column of your esteemed oblique prestigious. You can write one, both of them, esteemed oblique prestigious newspaper, full stop. I would like to draw kind attention of the concerned authorities. And this way you can begin of writing of letter to editor. This will be the first paragraph. And next, second para, what is the main issue, you have to write on that, and there is the reason, suppose the problem, and it's how it affects the problem on individual, and how it affects the problem on society, you can write in it. And next you can also include in second paragraph solutions, what will be the solution and what the authority should be done and what the individual can be done, and this way you can write in the solution. And next, in closing line you can write, I hope you will be brought this issue into light, and you are writing and you are expecting to the editor what you have written in later, and you are asking to light the issue in his newspaper. So this way you can include. There is the given some one more thing,
नाउ इन सेकेंड पैराग्राफ बॉडी ऑफ लेटर हाउ कैन यू स्टार्ट, आप कैसे लिख सकते हैं? जैसे यहाँ पर आप लिख सकते हैं द रेसिडेंट्स फेस मैनी प्रॉब्लम्स, द रेसिडेंट्स फेस मैनी प्रॉब्लम्स, इस तरह आप स्टार्ट कर सकते हैं। सपोज़ आपके मोहल्ला में रोड का कंडीशन बहुत मिजरेबल है, तो आप इस तरह स्टार्ट कर सकते हैं द रेसिडेंट्स फेस मैनी प्रॉब्लम्स ड्यू टू बैड कंडीशन ऑफ रोड। तो इस तरह आप आगे इसको बढ़ा सकते हैं। और नेक्स्ट आप देखिए, आप चाहते हैं कि हम शुरू करें इस सेकेंड वाला लाइन से, तो इससे भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे वेरियस कंप्लेंट्स हैव बीन फाइल्ड बट द रोड्स कंडीशन इज रिमेन सेम। तो इस तरह करके आप आगे बढ़ा सकते हैं। आगे ये भी लिख सकते हैं द मेन रीजन ऑफ राइटिंग दिस लेटर इज द रोड कंडीशन इज़ वेरी बैड। तो इस तरह करके आप आगे बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट ए लाइन से भी शुरू कर सकते हैं द मोस्ट एनोइंग थिंग इज, सबसे ज़्यादा परेशान करने वाला बात है इज़ दैट द रोड कंडीशन इज़ वेरी बैड। तो इस तरह करके आप स्टार्ट कर सकते हैं। और नहीं तो फिर एक नेक्स्ट लाइन ये है आई बिलीव दैट योर न्यूज़पेपर मस्ट विल बी हाईलाइट ऑफ द प्रॉब्लम। तो रिगार्डिंग इस तरह करके भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। और नेक्स्ट एंडिंग कैसे करना है, एंडिंग कैसे करना है बॉडी ऑफ लेटर में आई रिक्वेस्ट यू टू हाईलाइट दिस इशू। तो आप इशू उसमें रिक्वेस्ट कर सकते हैं किससे, एडिटर से, कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस इशू को हाईलाइट करें। आप इस तरह भी स्टार्ट कर सकते हैं आई होप दिस इशू विल बी ब्रॉट इनटू लाइट। मैं आशा करता हूं कि ये इशू को लाइट में लाया जाएगा, ये प्रकाशित किया जाएगा। तो इस तरह करके आप स्टार्ट करते हैं, इसको एंड कर सकते हैं। फिर ये हमने एक अपने से लिख दिया है, और अगर वो ना चाहें तो ये वाला आप लिखें, सभी में आप लिख सकते हैं। जैसे आई एक्सपेक्ट माई लेटर टू फाइंड ए सुटेबल स्पेस इन योर न्यूज़पेपर। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मेरा लेटर एक सुटेबल स्पेस फाइंड मतलब तलाश पाएगा या जगह पा पाएगा किस में, इन योर न्यूज़पेपर, आपके न्यूज़पेपर में। सो एज, इसलिए ताकि टू मेक पीपल अवेयर, लोगों को क्या किया जा सके, अवेयर किया जा सके। अबाउट द, हाँ अवेयर अबाउट द, यहाँ पर आपको ऐड करना है जैसे बैड कंडीशन ऑफ द रोड, आपका जो कंडीशन है रोड का बहुत बुरा है। और क्या किया जाता है, एंड कंसर्न अथॉरिटीज़ विल टेक अप्रोप्रिएट एक्शन, और कंसर्न जो इसके संबंधित अधिकारी जो है वो क्या कर सके, अप्रोप्रिएट उचित एक्शन ले सके। तो इस तरह करके क्लोज कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, इसी तरह आपका क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए राइट ए लेटर टू एडिटर ऑफ ए लोकल डेली अबाउट द बैड कंडीशन ऑफ रोड्स एंड ड्रेन्स इन योर सिटी। आप एक लेटर एडिटर के पास लिखें जिसका आपका लोकल डेली जो आपका न्यूज़पेपर आता है उस डेली के लिए, उसमें आपको लेटर लिखना है एडिटर के पास, किसके बारे में, द बैड कंडीशन, आपका जो रोड का कंडीशन है वो बहुत बुरा है, और किसका, ड्रेन्स का भी कंडीशन बहुत बुरा है। कहाँ पर, आपके सिटी में। रिक्वेस्टिंग हिम टू पब्लिश, उससे रिक्वेस्ट करना है पब्लिश करने के लिए, द सेम सो एज टू ब्रिंग इट टू द नोटिस ऑफ अप्रोप्रिएट अथॉरिटी, ताकि वो क्या हो सके, ये नोटिस में आ सके, किसको, जो संबंधित अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज़ है, जो कंसर्न अथॉरिटीज़ है उसको, इस मामले को। तो देखो जैसे वहाँ पर एड्रेस नहीं लिखा था तो आप अपना एड्रेस लिखेंगे। जैसे वहाँ पर क्वेश्चन में एड्रेस नहीं दिया गया है, तो आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे रहते हैं तो आप पहले लिखेंगे एग्जामिनेशन हॉल, कौन सिटी है, सिटी का नाम नहीं दिया है क्वेश्चन में, तो XYZ सिटी लिख देना है। उसके बाद एक लाइन स्पेस छोड़ना है, देन राइट डाउन इन स्टैंडर्ड फॉर्मेट द डेट 10 September 2020 एंड नेक्स्ट यू हैव टू लाइन whom आर यू राइटिंग, ये किसको लिख रहे हैं, तो द एडिटर, किसको, कौन एडिटर, द टाइम्स ऑफ इंडिया, कहाँ पर, हजारीबाग, एंड देन यू हैव टू इंक्लूड।
एंड सब्जेक्ट क्या है, बैड कंडीशन ऑफ रोड्स एंड ड्रेन्स इन XYZ सिटी। आपका ये रोड और ड्रेन्स कहाँ खराब स्थिति में है, ये XYZ सिटी में। देन दिस वे यू कैन राइट एंड देन लीव वन लाइन अगेन एंड राइट सैल्यूटेशन, और फिर से सैल्यूटेशन लिखो। अब लिखना स्टार्ट करो। जैसे हमने कई तरीके से आपको स्टार्ट करने के लिए बताएं कि आपको फर्स्ट पैराग्राफ में बिगनिंग कैसे करना है, तो उस तरह भी स्टार्ट करते हैं और इस तरह भी आप लिख सकते हैं। तो जैसे थ्रो द कॉलम ऑफ योर स्टीम्ड न्यूज़पेपर द टाइम्स ऑफ इंडिया, किसके थ्रो द कॉलम ऑफ योर स्टीम्ड न्यूज़पेपर, स्टीम्ड मीन्स प्रेस्टिजियस, आपके कॉलम आपके न्यूज़पेपर के उस कॉलम थ्रो मतलब द्वारा, किसका, न्यूज़पेपर कौन है, द टाइम्स ऑफ इंडिया, उसके द्वारा मैं क्या करना चाहता हूँ, आई वुड लाइक टू ड्रॉ अटेंशन, ड्रॉ काइंड अटेंशन, मैं उसका ध्यान, अटेंशन मीन्स ध्यान, क्या करना, आकर्षित, ड्रॉ मीन्स आकर्षित करना चाहता हूँ, ऑफ द कंसर्न अथॉरिटीज, उस संबंधित अधिकारी को, अथॉरिटीज ऑफ हजारीबाग के, ठीक है, किसके ओर, टूवर्ड्स बैड कंडीशन ऑफ रोड्स एंड ड्रेन्स इन XYZ सिटी, कहाँ पर क्या क्या खराब है, टूवर्ड्स की ओर, जो कंडीशन है बैड कंडीशन है, खराब स्थिति है, किसका, रोड का, और क्या, ड्रेन्स का, कहाँ पर, हजारीबाग सिटी में। तो इस तरह करके आप इसको लर्न कर सकते हैं और किसी पर भी आप इसको फिट कर सकते हैं। जैसे देखिए, और किसी, मान लो फ्रीक्वेंट कट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो इस पर आप भी लिख सकते हैं। जैसे थ्रो द कॉलम ऑफ योर स्टीम न्यूज़पेपर द टाइम्स ऑफ इंडिया, आई वुड लाइक टू ड्रॉ काइंड अटेंशन ऑफ द कंसर्न अथॉरिटीज ऑफ, यहाँ मैंने प्लेस का नाम दे दिया है, ऑफ XYZ सिटी भी कर सकते हैं, या तो इसको नहीं भी लिख सकते हैं, कंसर्न अथॉरिटी टूवर्ड्स बैड कंडीशन, टूवर्ड्स, मान लो यहाँ बैड कंडीशन दिया हुआ है, अगर मान लो फ्रीक्वेंट कट डाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अगर लिखना चाहते हैं तो टूवर्ड्स फ्रीक्वेंट कट डाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ये लिख सकते हैं इन XYZ सिटी। तो इस तरह करके आप किसी पर भी ये वाला लाइन आप फिट कर सकते हैं, इसलिए इसे आप याद कर लेंगे। अब देखो 4-5 लाइन आप अपने से इसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे आपको मिडिल, जो बॉडी ऑफ लेटर में मिडिल वाला जो लाइन था आपको बताए थे कि इस तरह आप स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे देखो, द रेसिडेंट्स फेस मेनी प्रॉब्लम्स ड्यू टू मेजरेबल कंडीशन ऑफ कॉलोनी रोड्स। अब देखिए, इसका कॉलोनी का जो रोड्स था उसका मेजरेबल कंडीशन होने के कारण जहाँ के रेसिडेंट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। अब देखो, और क्या के कारण, ड्रेन्स के कारण, इट इज़ वेरी ईजिली कैन बी फाउंड पैथोल्स वन द मिडिल ऑफ रोड्स। आप काफ़ी आसानी से रोडों पर क्या रोड के बीच में पा सकते हैं, क्या, पैथोल्स, गड्ढे, बड़े बड़े गड्ढे। इट कुड बी टेक एनी वन लाइफ वेरी इजली एनी टाइम, ये क्या कर सकता है, कई लोगों को जान ले सकता है कोई भी समय काफ़ी आसान तरीके से। द कंडीशन ऑफ ड्रेन्स इज़ वेरी पैथेटिक, यहाँ का जो ड्रेन्स का जो कंडीशन है बहुत बुरा है। इट इज़ फाउंड ऑलवेज चॉक्ड इवन इफ़ ये माइल्ड शावर हैपन्स देयर, अगर थोड़ा बहुत बारिश भी हो जाता है तो तुरंत क्या हो जाता है, चॉक हो जाता है। तो इस तरह करके आप लिख सकते हैं अपने तरीके से। और देखो और क्या है, एंड एरिया बिकेम फ्लडेड, और क्या हो जाता है, पूरा क्षेत्र क्या हो जाता है, वो फ्लडेड हो जाता है। सो सर अप्रोप्रिएट एक्शन कैन बी टेकन राइट नाउ बिफोर इट इज़ टू लेट। आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर से कि इसके लिए अप्रोप्रिएट एक्शन लिया जा सके ताकि कोई भी देर होने से पहले। अब देखो रिपेयरिंग क्या करना है, आप इसको मान लो ये बताना है कि सर क्या क्या किया जा सकता है, आप उसको सजेशन भी दे सकते हैं। तो उसके लिए देखिए, रिपेयरिंग ऑफ रोड एंड क्लीनिंग ऑफ ड्रेन्स शुड बी डन रेगुलरली। सर रिपेयरिंग जो रोड का है और ड्रेन्स का जो क्लीनिंग का काम है वो हमेशा होना चाहिए। द हाउसेस इंक्रोचमेंट टूवर्ड्स पब्लिक रोड शुड बी डिमोलिश्ड, और जो वैसा घर जो पब्लिक रोड के तरफ धीरे धीरे जो बढ़ा रहे हैं उसका घर भी टूटना चाहिए।
तो इस तरह करके आप सजेशन दे सकते हैं। एंड नेक्स्ट आप एंड कैसे कर सकते हैं, जैसे ये बताए थे कि आप कैसे कर सकते हैं, उसमें हम बताए थे कि थर्ड एंडिंग बॉडी ऑफ लेटर में क्या होगा। आई एक्सपेक्ट माई लेटर टू फाइंड द सुटेबल स्पेस इन योर न्यूज़पेपर सो एज टू मेक पीपल अवेयर अबाउट द रोड एंड ड्रेन्स कंडीशन। तो मैं आशा करता हूँ कि मेरा लेटर आपके जो न्यूज़ होता है उसमें एक सुटेबल प्लेस पा पाएगा, और ताकि लोग क्या हो सके, अवेयर हो सके और रोड और ड्रेन का कंडीशन से। एंड क्या हो सके, कंसर्न अथॉरिटीज़ कैन टेक अप्रोप्रिएट एक्शन, और कंसर्न अथॉरिटी जो है वो क्या कर सके, अप्रोप्रिएट एक्शन ले सके। और फिर थैंकिंग यू करके अब इस तरह फिर योर यहाँ पर देना है, एंडिंग करना है योर सिंसियरली, और देन वहाँ पर क्वेश्चन में नाम लिखा होगा तो नाम लिख देना होगा। तो दिस वे यू कैन राइट ए लेटर टू एडिटर। थैंक यू watching this channel.